Good morning, children. My name is Nitiksha Kadu from your computer department, and I will take your subject that is software testing. Okay. Now, in this subject, you have to learn total 5 unit. Okay. So today we are going to start with our unit number 1, that is basics of software testing and testing methods. Okay. Now, in this unit, we have to cover this total 7 topics. Okay. Now, the first one, there is software testing and objective of testing. Now, here we will learn what is software and what is the objective of testing. Okay. Then, here our second topic, that is different software terminologies like the failure, error, fault, defect, bugs. Okay. Then the third topic, that is test case. Here we will learn what is test case and how to create test case. Okay. Then our fourth topic, that is verification and validation. Then quality assurance, quality controls. So here we will learn what is validation and verification. Okay. Then our fifth topic, that is method of testing. That is there are two method of testing. The first one static and the second is dynamic testing. Okay. So here we will learn about these two methods in detail. Okay. And then our sixth topic, that is the box approaches. Now here we will learn the different approaches that are used for testing. For example, here white box testing. Okay. Then here we will learn about this white box testing in detail. Then or the seventh topic, that is black box testing. Okay. So here we will learn the requirement based testing, then boundary value analysis, equivalence partitioning. Okay. So these 7 topics or subtopics we have to cover in this unit. Okay. So from this topic, our today's topic, that is what is testing, software testing, objective of testing, then software testing terminologies, test case, entry and exit criteria, validation and verification, then quality assurance and quality control. So these topics we are going to cover in our today's lecture. Okay. Now, or first we will start with what is testing. Now here the testing is defined as the execution of work product with an intent to find the defect. Now what is testing? टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज अ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने कोई फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाया है. ओके. सो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. क्यों एग्जीक्यूट करते हैं? टू फाइंड द डिफेक्ट. मतलब उसमें कुछ एरर्स है, कुछ बग्स है, वो फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं और वो जो सॉफ्टवेयर बनाए उसको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके. सो हियर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग द एरर एज पॉसिबल. टेस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम लोग जो भी एरर्स हैं हमारे प्रोडक्ट में वो अनकवर करते हैं. उसमें जो जो भी एरर है वो सब हम टेस्टिंग के प्रोसेस में अनकवर करते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल बिलिंग सॉफ्टवेयर. ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. फिर हम लोग आइडेंटिफाई करें वो प्रॉपरली बिल जनरेट कर रहा है कि नहीं. फिर उसमें जो एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो प्रॉपरली कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं. ओके. सो दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टिंग. और टेस्टिंग से क्या होता है, उसमें जो भी एरर्स रहती है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ओके. सो जो भी एरर्स है, मतलब उसमें बिल जनरेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इन टेस्टिंग. ओके. ओके. यहाँ पे देखो 3 टाइप्स की टेस्टिंग है. फर्स्ट वन हार्डवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एनवायरनमेंट टेस्टिंग. ओके. नाउ ये जो हार्डवेयर टेस्टिंग, मतलब जो भी हार्डवेयर यूज़ किए हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस हार्डवेयर टेस्टिंग में. ओके. देन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब जो हम लोग ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे. ओके. देन हमारा एनवायरमेंटल टेस्टिंग. जो एनवायरमेंटल टेस्टिंग क्या होता है कि जो हम लोग ने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो एनवायरमेंटल को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है ना,
कि वो हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ने कार डेवलप की, ओके, एक कार है, तो उसके टेस्टिंग में क्या होगा कि वो जो कार है वो हमारे एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूटेड तो नहीं कर रहा है, उसकी भी टेस्टिंग होती है। वो क्या हुआ है, एनवायरमेंटल टेस्टिंग। उसमें क्या चेक करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को डिफेक्ट करता है कि नहीं। ओके, सो ये रहा हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग बेसिकली क्या है, इट इज़ अ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट क्यू टू फाइंड द डिफेक्ट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, नाउ हियर व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? Software testing help to identifying the error, gaps or missing requirement in contrary to actual requirement. It can be either done manually or using automated tool. Okay, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई भी एरर से, फिर मिसिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग ने यहाँ एक सॉफ्टवेयर बनाया है लॉगिन पेज ये ओके ना। यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन पेज बनाया तो उसमें क्या रहता है, पहले तो आपका यूज़र नेम एंटर रहता है और पासवर्ड एंटर और लॉगिन। ओके, फिर नीचे आपने एक फील्ड डालनी है कि फॉरगॉट पासवर्ड तो डालने है, पर आप लोग ने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसमें वो फॉरगॉट पासवर्ड का फील्ड डालना रह गया। सो ये क्या रहता है, मिसिंग रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट के यूज़र के जो रिक्वायरमेंट है कि उसको मिसिंग पासवर्ड का एक कॉलम डालना है, पर इसमें क्या हुआ कि वो डालना भूल गया। ओके, तो ये मिसिंग रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी एरर है वो फाइंड करना है, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता कैसे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू वे से होता है कि एक तो आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हो और दूसरा कोई ऑटोमेटेड टूल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इट कैन बी डन बाय टू वेज। नाउ यार देखो, द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड एज अ प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग and verifying that the software program or application or product। देखो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि मीट बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट दैट गाइडेड इट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। जो भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट के हिसाब से है कि नहीं है। ओके, देन वर्क एज एक्सपेक्टेड, जो भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं। देन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक, और आप लोग ने बनाया तो है सॉफ्टवेयर। ओके, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। ओके, वो आप लोग को ध्यान रखना है। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इट इज़ बेसिकली द फाइंडिंग द एरर्स, गैप एंड मिसिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। ओके, सो वो इसीलिए सिमिलरली हियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, दैट मीन्स हम लोग क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टेस्टिंग शुड बी फाइंड डिफेक्ट बिफोर द कस्टमर फाइंड देम आउट। मतलब टेस्टिंग से क्या होता है कि हम लोग डिफेक्ट पहले कस्टमर से पहले, फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया तो उसमें जो भी एरर आई हो तो कस्टमर ने फाइंड की ना, तो उस टेस्टिंग से क्या होता है, वो कस्टमर कोई भी एरर फाइंड कर रहे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो डिफेक्ट फाइंड कर लेंगे। उससे क्या रहता है कि हमारा रेपुटेशन अच्छा रहता है। फर्स्ट तो क्या है कि हमारा रेपुटेशन अच्छा रहता है कि हाँ उन लोगों ने जो प्रोडक्ट बना के दिया है वो अच्छा है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जो कस्टमर ने डिफेक्ट फाइंड कर दिया है तो हमारा रेपुटेशन कम हो जाती है कि उन लोग ने प्रॉपरली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके नहीं दिया है। ओके, देन सेकेंड है हमारा टेस्टिंग शुड बी अप्लाई ऑल थ्रू द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या रहता है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मतलब वो डिफरेंट फेज रहते हैं, फ्रॉम डेटा गैदरिंग से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो रहा है। तो ये जो हर एक फेज़ है उस हर एक फेज़ में हम लोग को टेस्टिंग करना चाहिए। तो क्या रहता है कि फर्स्ट फेज ये आप लोग को मालूम हो जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है और डेवलप हो रहा है। ओके, देन द टेस्टिंग मस्ट बी कंडक्टेड विद सम गोल और रीज़न। इसका मतलब क्या है कि
आप लोग फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है, ओके। तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि आपका लॉगिन का डेटा प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली पासवर्ड है कि नहीं, ओके। तो ये क्या है कि टेस्टिंग मस्ट बी कंडक्टेड विद सम गोल, कि हम लोग ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए और रीज़न होना चाहिए, ओके। देन टेस्टिंग मस्ट प्रिवेंट द डिफेक्ट। टेस्टिंग से क्या होता है कि हम लोग को एरर आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन सी एरर है हमारे सॉफ्टवेयर में, ओके। सो इट मस्ट बी प्रिवेंट डिफेक्ट। वो क्या करेगा, जो भी डिफेक्ट आता है हमारे सॉफ्टवेयर में वो प्रिवेंट करेंगे, ओके। देन टेस्टिंग मस्ट बी फाइन बैलेंस ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट डिटेक्शन। देखो यहाँ पे टेस्टिंग से क्या होता है, टेस्टिंग हम लोग ने किया तो क्या हुआ कि एक तो हम लोग को टेस्टिंग डिफेक्ट हो डिटेक्ट हुआ, जो भी एरर है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरर you have to prevent that or correct that error, so you can create a defect prevention, okay। so here the testing must be fine, वो balance होना चाहिए between the defect prevention and defect detection, okay। so these are the few objective of our software testing, that are the software should be find and defect before the customer find them. Then the second one, the testing should be applied through the phase of our software life cycle. Then the testing must be conducted with some goal. Then testing must prevent a defect. Then testing must be fine balance between defect prevention and defect detection, okay। so these are the objective of our software testing. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज, ओके ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टर्म, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लर्न करने से पहले हम लोग डिफरेंट टर्म्स लर्न करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, ओके। नाउ द फर्स्ट टर्म दैट इज एरर। नाउ व्हाट इज एरर? एन एरर इज अ मिस्टेक और मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर. In the category of developer, we include software engineering, programmer, analyst and testers, okay। Now error क्या रहती है? error क्या रहती है? basically the mistake, जो mistake हम लोग से हो जाती है. then misconcept, को भी समझने में हम लोग को misunderstanding हो जाती है, misconception हो जाता है, ओके डेवलपर से, वो क्या रहता है हमारा error, ओके। ना इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपर वी इंक्लूड, डेवलपर में क्या कौन से आ जाएगा, एक तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलप करते हैं, देन प्रोग्रामर, एनालिस्ट एंड टेस्टर, ओके। सो बेसिकली द एरर इज अ मिस्टेक और मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा बग। नाउ व्हाट इज बग? अ बग इज अ रिजल्ट ऑफ द कोडिंग एरर। हमारा एरर क्या था? एरर क्या था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन था, बट बग क्या है? वो रिजल्ट ऑफ कोडिंग एरर। जो कोडिंग जो हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइनर करता है उसमें जो भी एरर रहती है वो क्या हुआ हमारा बग। एन एरर फाउंड इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बिफोर द प्रोडक्ट इज शिप्ड टू द कस्टमर, ओके। सो जब भी आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो एरर क्या है कि आप लोग को डेवलपमेंट फेज में ही पहले ही आइडेंटिफाई करनी है, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले, ओके। सो यहाँ पे बग क्या है? बग इज बेसिकली द कोडिंग एरर। वो क्या है? कोडिंग एरर्स, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा फेलर। व्हाट इज फेलर? अ फेलर इज द इनएबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम और कंपोनेंट टू परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन विद इन द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये क्या हुआ कि फेलियर का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, ओके। तो वो सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ आपका? फेलर। सो द फेलर इज द इनएबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कंपोनेंट टू परफॉर्म इट्स रिक्वायरमेंट फंक्शन विद इन द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। मतलब जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फेलर, ओके। देन हमारा नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज फॉल्ट। नाउ इन इनकरेक्ट स्टेप प्रोसेस और डेटा डेफिनेशन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉज द प्रोग्राम टू परफॉर्म इज एन
unintended or unaccepted So okay, now it is the basically the fault is the ये क्या है, द फॉल्ट इज इंट्रोड्यूस टू द सॉफ्टवेयर एज द रिजल्ट ऑफ एरर. ये क्या है, एज द रिजल्ट ऑफ एरर. सो हियर द फॉल्ट इज अ इनकरेक्ट स्टेप प्रोसेस और डेटा डेफिनेशन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम. वो क्या हुआ कि आप लोग ने कोई भी इनकरेक्ट स्टेप ले लिया, फिर आप लोग ने कोई भी इनकरेक्ट आप लोग ने प्रोसेस लिए, डेफिनेशन लिए, तो क्या हुआ कि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इनइंटेंडेड और अनएक्सेप्टेडली वो कुछ दूसरा ही परफॉर्म करता है. ओके, टास्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से टास्क परफॉर्म नहीं करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्ट. फॉल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सॉफ्टवेयर एज द रिजल्ट ऑफ एन एरर. वो कैसे आता है कि एरर की वजह से सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आ जाता है. ओके, सो ये रहा हमारा फेलर इन fault. Then what is the next topic? Our next topic, that is test case. What is test case? A test case is a set of condition or variable under which the tester will determine whether the system under test satisfied requirement or work correctly. Okay, so ये क्या है, set of condition है. test case क्या है, basically it is a set of condition है. ओके, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करता है कि नहीं. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग टेस्ट केस कैन ऑल्सो हेल्प फाइंड द प्रॉब्लम्स इन द रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशन. टेस्ट केस से क्या रहता है कि आप लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो. यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशन. सो बेसिकली ये टेस्ट केस क्या है, वो सेट ऑफ कंडीशन है. वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक लॉगिन फॉर्म लिया. ओके, लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया, तो लॉगिन फॉर्म में क्या रहता है, एक तो आपका यूज़र नेम रहता है और पासवर्ड रहता है. ओके, तो टेस्ट केस में हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वेदर आप लोग ने लॉगिन फॉर्म में यूज़र आईडी एंटर किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, फिर पासवर्ड एंटर किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, और प्रॉपरली लॉगिन हो रहा है कि नहीं, वो इसमें टेस्ट केस में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, देन यहाँ पे देखो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट केस. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट वन है एक्यूरेट. ये एक्यूरेट क्या करेगा, एक्सेक्ट द पर्पस. इसमें क्या रहेगा कि एक्यूरेट मतलब पर्पस के हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं. देन इकोनॉमिकल, नो अननेसेसरी स्टेप ऑफ वर्क. उसमें क्या आइडेंटिफाई करेगा क्या कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, उसमें अननेसेसरी स्टेप है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करेगा. देन ट्रेसेबल, देन कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रेस टू रिक्वायरमेंट. देन रिपीटेबल, कैन बी यूज टू परफॉर्म द टेस्ट ओवर एंड ओवर. इसमें क्या रहता है कि वो हम लोग रिपीटेड मतलब टेस्ट जो है रिपीटेडली कर सकते हैं कि नहीं. ओके, देन रीयूजेबल, कैन बी रीयूज इफ़ नेसेसरी. मतलब जो आप लोग ने टेस्ट केस से डेवलप किया है वो हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर गुड टेस्ट केसेस. ओके, सो बेसिकली द टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ कंडीशन that determine whether the system satisfy the requirement or work properly or not. ओके, देखो यहाँ पे आप लोग को एक टेस्ट केस का टेम्पलेट दिया है. ओके, तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. पैरामीटर क्या है, फर्स्ट पैरामीटर दैट इज टेस्ट केस आईडी. जो आप लोग ने टेस्ट केस क्रिएट किया है फर्स्ट उसका आईडी रहेगा. तो आईडी क्या है, आईडी इज द टेस्ट सूट टू विच द टेस्ट केस बिलोंग्स टू. ओके, ये क्या करेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा ये टेस्ट किससे बिलोंग करता है. देन डिस्क्रिप्शन, उसमें आप लोग को टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन देना है. देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है में क्या आएगा, आप लोग को टेस्ट केस करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए और रिलेटेड रिक्वायरमेंट आप लोग को लिखने हैं. ओके, देन प्रोसीजर, प्रोसीजर में आप लोग को क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द स्टेज. तो इसमें आप लोग को
जो टेस्ट करना है उसका स्टेप लिखना है कि वो आप लोग को कौन से स्टेप, एक के बाद एक कौन सा स्टेप आएगा टू एग्जीक्यूट दैट टेस्ट. देन टेस्ट डेटा. The test data or link to the test data that are to be used while conducting the test. मतलब आप लोग को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज का टेस्ट करना है. ओके, तो उसमें आप लोग को कौन से डेटा चाहिए. फॉर एग्जांपल लॉगिन के पेज का है तो आपको यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए. ओके, तो वो डेटा आप लोग को इसमें आइडेंटिफाई करना है. देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या आएगा कि वो आप लोग के रिजल्ट, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब जो भी आप लोग का मतलब टेस्ट के लिए आप लोग को कौन सा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. देन एक्चुअल रिजल्ट, ये पहले थे आपके एक्सपेक्टेड, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टेस्ट का रिजल्ट. देन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है. ओके, देन लास्ट है हमारा स्टेटस. स्टेटस में पास और फेल. अदर स्टेटस कैन बी नॉट एग्जीक्यूटेड इफ टेस्टिंग इज नॉट परफॉर्म एंड द ब्लॉक इफ टेस्टिंग इज ब्लॉक. ओके, सो स्टेटस में क्या रहेगा कि वेदर इट इज़ पास और फेल, का आपका जो टेस्टिंग आप लोग ने किया है वो प्रॉपर है कि नहीं. देन दूसरा स्टेटस भी आ सकता है, एक तो ये नॉट एग्जीक्यूटेड, वो कब आएगा कि टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हुआ तब. देन दूसरा आएगा ब्लॉक, जब टेस्टिंग ब्लॉक हो गया तब. ओके, सो ये क्या है हमारा टेस्ट केस टेम्पलेट. इसमें आप लोग के डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हैं. ओके, देन now we'll understand with one example, that is test case example for the login form. ओके, देखो फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा था यहाँ पे टेस्ट केस आईडी. ओके, तो यहाँ पे देखो आईडी दिया है TC01, दैट इज टेस्ट केस आईडी. देन सेकेंड में है डिस्क्रिप्शन, क्या आप लोग को ये देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट केस कि किसका मतलब आपको टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर. तो क्या है पहला चेकिंग लॉगिन फॉर्म. ओके, देन टेस्टिंग डेटा. लॉगिन फॉर्म का है तो क्या डेटा आएगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है हमारा, लॉगिन एंड रीडायरेक्टेड टू होम पेज. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा कि हम लोग जब भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा और वो होम पेज में हम लोग को रीडायरेक्ट करेगा. ओके, देन यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि लॉगिन हो गया एंड रीडायरेक्ट टू द होम पेज. अब वो जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हमारा एक्चुअल रिजल्ट भी आया, तो हमारा स्टेटस क्या आएगा, पास. यहाँ पे देखो आप लोग कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि लॉगिन हो जाए और होम पेज पे डायरेक्ट हो जाए, और एक्चुअल रिजल्ट भी क्या आया कि हमारा लॉगिन भी हो गया और रीडायरेक्ट किया, तो क्या आ गया स्टेटस हमारा पास. ओके, सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट केस आईडी दिए हैं और उसके हिसाब से उसके डेटा दिए.